We must begin every day हमें प्रतिदिन इससे हमें शुरुआत करना है the recognition this is the day the Lord has made, we will rejoice and be glad in it. और ये जानते हो कि आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया और हम उसमें आनंदित होंगे। Even if we don't say those words, और यहाँ तक कि हम उन शब्दों को यदि नहीं भी बोलते अपने मुख से, this is the day the Lord has made. और आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है The devil did not make it. और शैतान ने नहीं बनाया है We did not make it. और हमने भी उसे नहीं बनाया है। The Lord has made this new day. और प्रभु ने ये नया दिन बनाया है। A day will come when Christ comes back, when he'll wind up. There'll be no more days, it'll be eternity. और जब उसका आगमन होगा, जब वो वापस आएगा, तब कोई भी दिन नहीं होगा और अनंत काल होगा। The Lord is in control of this universe. और परमेश्वर इस संसार का नियंत्रण करता है। Please remember this always. और हमेशा इस चीज को आप स्मरण करें। My heavenly Father runs this universe. और मेरा स्वर्गीय पिता इस संसार, इस ब्रह्मांड को चलाता है। Yeah, so that's very important. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है Because so many believers are depressed and discouraged as if the devil runs this universe. और आज बहुत सारे मसीह जो है बहुत ही उदास और निराश है, जैसे कि शैतान इस संसार को चला रहा है, नियंत्रित कर रहा है। Whenever you grumble or complain, you are actually saying, "Oh Satan, you are running this universe." और जब कभी आप कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते, तो आप ये कहते कि शैतान तो इस संसार को चला रहा है। For these next few minutes, the devil's running this universe. और कुछ आगे के जो मिनट जो है वो शैतान इस संसार को चला That's रहा why I है। have to grumble and complain. और इसलिए मुझे शिकायत करना पड़ रहा है, कुड़कुड़ाना पड़ रहा है। If you believe that your heavenly Father runs this universe, you will never grumble or complain. और यदि आप विश्वास करते कि आपका स्वर्गीय पिता इस संसार को चलाता है, तो कभी भी आप That शिकायत is नहीं one of the करेंगे। wonderful things that happened to me when I understood the kingdom of God. और यही सबसे अद्भुत बात मेरे साथ बनी जब मैंने परमेश्वर के राज्य को समझा। I told you, for many years I thought the kingdom of God is something I have to seek, doing missionary work or preaching somewhere. और जैसे मैंने आपको कहा, बहुत सालों तक मेरी समझ ये थी परमेश्वर के राज्य के बारे में कि बहुत सारे मिशनरी या बाहरी सेवा के कामकाज करना। Till I understood what Jesus said in Luke 17. Please look at this verse. और लूका 17 के अंदर जो यीशु मसीह ने वचन कहा, उसको हम देखें। Luke 17, लूका 17 अध्याय verse 20. उसका 20 वचन। Jesus was questioned by the Pharisees as to when is the kingdom of God coming? और फरीसी यहाँ पर यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहे कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। And listen to this. और उस यहाँ पर उत्तर The सुने। kingdom of God is not coming with signs to be observed. और यहाँ पे उत्तर को देखे, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं आता। A lot of people think it's going to be with signs and miracles. One day the kingdom of God will come. और बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि चिन्ह चमत्कार के साथ परमेश्वर का राज्य एक दिन आएगा। He said it is not with signs. और यहाँ पे लिखा चिन्ह और चमत्कारों के साथ And it नहीं is है। not that you say look here or look there. और ये भी नहीं है कि यहाँ देखो वहां देखो, Because the kingdom of God is inside you. क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। It is inside you. वो आपके भीतर है। That is what Jesus said. The kingdom of God is within us. और यीशु मसीह ने यही कहा है कि परमेश्वर का राज्य हमारे भीतर है। And when did that kingdom come? और ये राज्य कब आया है? That also Jesus said in Mark chapter 9. मरकुस उसका 9 अध्याय। First of all, where is the kingdom of God coming? और कहां से परमेश्वर का राज्य आ रहा है? Where? कहां? Not outside, बाहर नहीं, within us. लेकिन हमारे भीतर। Next question. दूसरा जो प्रश्न है, When is it coming? कब परमेश्वर का राज्य आ रहा है? Not when Christ returns at the end of time. और जब समय का अंत होगा, जब यीशु मसीह का आगमन होगा, तब नहीं आएगा। See Mark chapter 9 and verse 1. मरकुस उसका 9 अध्याय वचन 1। Mark chapter 9 and verse 1. मरकुस 9:1। And Jesus said to them, यीशु ने उनसे कहा, Truly I say to you, और मैं तुमसे सच सच कहता there हूँ, are some people standing here right now who will not die till the kingdom of God has come with power. और वो कहता है कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे है कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ न देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। Is there anybody living here, living on earth today who was living 2000 years ago when Jesus said that? और यीशु मसीह ने जब कहा, ऐसा कोई यहाँ पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जब यीशु मसीह ने 2000 पहले कहा तब वो जी वहां पर था? No. नहीं, All those people have died. सारे लोग उनकी Who heard मृत्यु हो that? चुकी है। किसने सुना है? But he said, some of you standing here will not die till they see
the kingdom of God come with power. लेकिन वो कहते तुम में से यहाँ पर खड़े जो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ में आते हुए जब तक न देखें मृत्यु that नहीं means there देखेंगे। were some people who listened to Jesus at that time who actually lived to see the kingdom of God come with power. और इसका मतलब ये कि उस समय जिन्होंने यीशु मसीह को सुना उन्होंने परमेश्वर के राज्य को सामर्थ में आते हुए And देखा the था। way to find out when that happened और ये जो रास्ता जिससे हम जान सकते हैं कि कब वो हुआ, is to think of that word power. और ये इस तरह हम जान सकते हैं उस सामर्थ के बारे में सोचने के बाद। One, the kingdom of God is within you. पहला, परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। Secondly, it will come with power while some people there are still living. और जब वहां पर लोग जीवित थे वहां पर वो परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ वहां आया। Then you turn to Acts chapter 1. और वहां पर प्रेरितों के काम पहले अध्याय में हम जाते हैं। And Jesus said in Acts chapter 1 and verse 8, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. और ये लिखता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। And I told you the other day how in the Old Testament the Holy Spirit was only upon people. और jैसे मैंने आपको बताया कि कैसे पुराने नियम में पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर होता था। He could not come inside वो पवित्र आत्मा भीतर नहीं आ पाता था because the way into man's spirit was closed due to sin. और क्योंकि पाप के कारण मनुष्य की आत्मा के अंदर जाने का, भीतर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। And the Holy Spirit could never dwell inside a heart और in which there was sin. और जिस हृदय के अंदर पाप है वहां पवित्र आत्मा वास नहीं कर पाता था। So something had to be done to remove that sin in man's heart. और मनुष्य के हृदय से उस पाप को निकालने के लिए कुछ न कुछ करना था। And all the thousands of bulls and goats sacrificed in the Old Testament temple could not cleanse that. और पुराने नियम में हजारों भेड़ों बकरियां और बैलों को जो बलिदान किया उनका लहू काफी नहीं था। But when Jesus died and his blood was shed, that could cleanse our sin. और जब यीशु मसीह मरा उसके लहू के द्वारा हमारे पाप साफ या पूरी तरह से शुद्ध And होते when he हैं। ascended up to heaven, और जब वो स्वर्ग पर उतरा with चला गया the virtue of that blood that was shed on earth, और जो उस धरती पर लहू बहा गया उस कारण के, God could righteously forgive our sin. और उस कारण परमेश्वर पूरी तरह से धार्मिकता के कारण See, हमें पूरी तरह से साफ करता है। many people have not understood how serious sin is. और बहुत सारे लोगों ने इस पाप को गंभीर रूप से नहीं समझा है। They think committing a sin is like breaking a plate or something like that. और वो समझते पाप करना तो एक प्लेट को तोड़ने जैसा है। Some people say, a little child can say, oh, if I broke a plate and I say, Mummy, I'm sorry, Mummy will forgive me immediately. और एक छोटे बच्चे के समान जो कहता है प्लेट तोड़ के माता से कहता है कि मम्मी मुझे माफ कर, ये हो गया। और इस प्रकार हम पाप को लेते हैं। Why can't God forgive my sin? और क्यों परमेश्वर मेरे पापों को क्यों नहीं माफ करेगा? I say, listen, that's because your sin is not like breaking a plate. और क्योंकि आपका पाप जो है वो प्लेट तोड़ने के समान, कोई गलती के समान नहीं है। The smallest sin और सबसे छोटे से छोटा in your पाप thoughts आपके विचारों में, or your words आपके शब्दों में, or your actions और आपके कार्यों में, or your attitudes और to people और आपके लोगों के प्रति स्वभाव में, or the bad motive with which you do a good thing. और जो अच्छे काम आप बुरे जो इच्छाएं हैं या इरादों के साथ आप करते For हैं। example, उदाहरण के तौर if पे I preach, यदि मैं प्रचार करता it's a हूँ, good thing, अच्छी बात है, wonderful message, अद्भुत प्रचार but ये है, the motive is to get money. लेकिन उसका भीतर का जो इरादा जो That है वो becomes a पैसा sin. है और ये पाप है। Now you may say, I don't preach for money. और ये आप कह सकते हैं कि मैं पैसों के लिए प्रचार नहीं If करता, you preach for honor, लेकिन यदि आप आदर पाने के लिए प्रचार करते that हैं you want people to think you're a better preacher than somebody else, और आप चाहते कि लोग आपके बारे में सोचे कि आप और लोगों से अधिक बेहतर प्रचारक then you हैं, are as bad a preacher as the other guy who's preaching for तो money. आप उतने ही प्रचारक जो पैसों के पीछे पड़े उतने ही आप बदतर हैं। There is no difference between seeking honor or seeking money. और पैसों के पीछे भागना या आदर के पीछे भागना, इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं Both है। are sin. ये दोनों एक समान है। Many people in CFC who don't seek money seek for honor. और सीएफसी के अंदर शायद वो पैसे नहीं ढूंढते होंगे लेकिन वो आदर की खोज में They है। are as bad a preacher as any Pentecostal who seeks for और money. यहाँ तक कि वे ऐसे इतने बदतर है जितने कि पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं के अंदर प्रचारक पैसों की खोज But करते they are हैं। proud, we don't seek for money. और वे कहते हैं वो तो घमंड से भरे कि हम पैसों की But खोज they नहीं try to करते, show I'm a better elder than that person, I'm a better preacher than that person. लेकिन वो लोगों को बताने की कोशिश करते मैं उस व्यक्ति से अच्छा प्राचीन, And they- उस व्यक्ति से अच्छा मसीही में हूँ। The sin is another color, that's all. It is still sin. और ये पाप का एक अलग रूप है या अलग रंग है, लेकिन वो पाप ही है। All those things, every single sin is equivalent to about 100 murders. और एक छोटा सा छोटा पाप वो 100 हत्या करने के समान, एक समान ही वो है। Not like breaking a plate. तो ये प्लेट तोड़ने के समान नहीं Do है। you believe in God's eyes one sin is equal to 100 murders? और आप जान पाते कि एक छोटा सा पाप एक 1000 या एक 100 हत्या करने Now समान you है। realize if a man has committed 100 murders, he must definitely be hanged, without a doubt. और आप जानते कि जितने इतने हत्या किया है वो जरूर वो फांसी के फंदे पर चढ़ने के लायक है। God is so holy और परमेश्वर इतना that पवित्र है every sin is like that.
Every sin is like that. और हर एक पाप ऐसा ही है। Thought in word, in thought, all sins. और Every sin is like that. हर एक पाप ऐसा ही है, Like committing many murders. बहुत सारे जैसे हत्या करते हैं। So, if I sin in my words और यदि मैं अपने शब्दों में पाप or करता in my हूँ thoughts, और मेरे विचारों में, it is the same as my committing many murders. और ये ऐसा ही है जैसे मैंने बहुत सारे हत्या किया है। So please remember this. और इसको हमेशा आप याद रखें। So sin is a very, very serious thing. और पाप जो है बहुत ही गंभीर चीज है। And that is why Jesus had to die. There was no other way for that sin to be removed. और इसलिए यीशु मसीह को मरना था, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था जिसके द्वारा उस पाप को निकाला जाए। And when that sin was removed, then the Holy Spirit could come inside. और जब उस पाप को निकाला गया तब पवित्र आत्मा हमारे भीतर आया। That is why it says in John 7 and verse 39 और यूहन्ना 7:39 में इस प्रकार लिखा गया है, that the Holy Spirit could not be given till Jesus was glorified. और जब तक यीशु मसीह महिमावान नहीं किया तब तक पवित्र आत्मा उन्हें नहीं दिया गया था। And so this happened on the day of Pentecost. और इसलिए ये जो है पेंतिकोस के दिन में हुआ। And on the day of Pentecost, the Holy Spirit came within. और पेंतिकोस के दिन पवित्र आत्मा जो है हमारे भीतर आया। Then the kingdom of God came in power. और तब परमेश्वर का जो राज्य है वो सामर्थ के साथ वहां पर उतरा। So the kingdom of God is within. इसलिए परमेश्वर का राज्य जो है हमारे And भीतर है। it comes within you when God can fill you with His Holy Spirit. और जब वो आपके भीतर आता है तब पवित्र आत्मा आपको भरता है। It's not enough to get forgiveness of your sins. और केवल आपके पापों से क्षमा प्राप्त करना उतना ही काफी नहीं है। For the kingdom of God to come within you with power, you must be filled with the Holy Spirit. और यदि परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आपके ऊपर उतरना है तो आपको पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। The greatest blessing in the old covenant was health and wealth. और पुराने नियम के अंदर बहुत ही जो आशीषें थी वो जो स्वास्थ्य था और संपन्नता थी। And the greatest blessing in the new covenant is to be filled with the Holy Spirit. और नए नियम की सबसे बड़ी जो आशीष है वो पवित्र आत्मा से भरना है। And to partake thereby of God's own nature. और उसके द्वारा परमेश्वर का जो दिव्य स्वभाव है उसमें सहभागी होना है। The greatest thing is not victory over sin, और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि हम पाप के ऊपर विजय but पाए, to partake of God's own nature. लेकिन परमेश्वर जो खुद का उसका स्वभाव है उसके दिव्य स्वभाव में हम सहभागी हो सके। God's nature is righteousness, peace and joy. परमेश्वर का स्वभाव जो है धार्मिकता, मेल मिलाप, शांति और आनंद है। And the wonderful message of the gospel is that God gives us that nature. और सुसमाचार का यही संदेश है कि परमेश्वर हमको वो स्वभाव देता है। All the blessings of health and wealth are zero compared to God's nature. और परमेश्वर के स्वभाव की तुलना के अंदर ये जो सुसमाचार स्वास्थ्य का और संपन्नता का है वो शून्य है। So those who seek after health and wealth are seeking for garbage compared to seeking for God's nature. और परमेश्वर के स्वभाव के बदले में जो लोग स्वास्थ्य और संपन्नता को खोज रहे हैं वो इस कचरे को खोजने के समान हैं। And see how many people in this world are seeking for this rubbish. और अब देखिए संसार में कितने सारे लोग इस कचरे को ढूंढ रहे हैं। I'm not saying money is rubbish. मैं ये नहीं कहता कि पैसा एक कचरा है, But what is 1 paisa compared to 1 crore rupees? लेकिन आप तुलना करें एक पैसा और 1 करोड़ रुपए की तुलना आप करके देखें। Compared to 1 crore rupees, 1 paisa is rubbish. और 1 करोड़ की तुलना के अंदर एक पैसा जो है वो कचरा है। And all the money in the world is rubbish compared to God's nature in the same way. और परमेश्वर के स्वभाव की तुलना में संसार का सारा पैसा उसी प्रकार से पूरी तरह से कचरा है। So when people are not seeking for God's nature in their life, और जो लोग अपने जीवनों में परमेश्वर का स्वभाव नहीं but are ढूंढते हैं seeking for health and wealth, और जो स्वास्थ्य और संपन्नता को उनके जीवन में खोजते हैं, they are like a foolish man. और वो एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति के समान हैं, He is offered 1 paisa or 1 crore rupees and he takes 1 paisa. और जिसको एक पैसा और 1 करोड़ रुपया दिया गया लेकिन वो 1 पैसे को ले लेता है। What would you think of such a person? और ऐसे व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचेंगे? You try that with a little baby, for example, 1-year-old child. और 1 साल का बच्चा है उसके साथ आप इसको करके देखें, You give him some 5 rupee toy which just makes a lot of noise. और आपको 5 रुपए का उसको एक खिलौना दे जो बहुत शोर करता है, And you give him a 2000 rupee note. और उसको 1000 का आप नोट दे, All those children will take that 5 rupee toy. और सारे उम्र के वो जो बच्चे वो 5 रुपए का वो खिलौना लेंगे, That is more valuable to that child than this 2000 rupee note. और उसको पता नहीं है वो 2000 का जो नोट है उसका क्या But करना an है। adult knows that 5 rupee toy is nothing. This 2000 rupee note is लेकिन valuable. बड़े जो सयाने लोग हैं वो जानते हैं कि 5 रुपए का जो खिलौना कुछ भी No. नहीं है उस हजारों करोड़ों रुपयों की तुलना में। When I see in so many churches people
responding to a gospel that will make you healthy and wealthy in this world. और मैं बहुत सारे ऐसे जब लोगों को देखता हूं जो संपन्नता और स्वास्थ्य का जो सुसमाचार सुना जाता है But उसके प्रति you will प्रतिक्रिया be करते हैं, defeated by sin. लेकिन वो पाप से पराजित होते हैं। And here is another gospel यहाँ और एक समाचार है, where you will get overcome sin और जहां पर पापों के ऊपर विजय and you प्राप्त will करना है partake of God's nature. और परमेश्वर के स्वभाव में And सहभागी ना है, और You may not be healthy or wealthy, but you will have enough for all your needs on earth. और यहाँ तक आप स्वास्थ्य से या बहुत ही संपन्नता से भरपूर नहीं होंगे, लेकिन आपकी जरूरतों के लिए पर्याप्त आपके पास होगा। A wise person will choose that. और जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो इसको चुनेगा, That is the kingdom of God. और ये परमेश्वर का राज्य है। Like I read yesterday, Romans 14:17. और जैसे मैंने रोमियो का 14 और 17, Our theme for this for this conference is seeking the kingdom of God first. और जैसे इस कॉन्फ्रेंस का जो शीर्षक है वो है कि परमेश्वर के राज्य को सर्वप्रथम खोजना। And we read that verse in Luke 17. The kingdom of God is within you, not outside. और उस वचन को हमने पढ़ा कि परमेश्वर का राज्य भीतर नहीं, लेकिन आपके बाहर नहीं, लेकिन आपके भीतर है। And we also saw that the kingdom of God will come before Jesus returns the second time. और हमने ये भी देखा कि जब यीशु का दूसरा आगमन होगा उसके पहले परमेश्वर And का that राज्य it का आना होगा। came on the day of और Pentecost. वो पेंतिकोस्त के दिन आया, What was that kingdom? और वो परमेश्वर का Let me राज्य क्या read था? again what I read yesterday. और हमने कल जो सुना था Romans 14:17. रोमियो 14 उसका 17, The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं पर धर्म, मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। Let me show you another verse. और एक वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, Matthew 12 and verse 28. मत्ती 12:28। Matthew 12:28. If I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. मत्ती 12:28 पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। One mark of the kingdom of God is power over demons. और परमेश्वर के राज्य का आने का एक चिन्ह यह है कि दुष्ट आत्माओं के ऊपर सामर्थ रखना। Satan defeated. और शैतान को पराजित किया गया। That was not true in the old covenant. और ये पुराने नियम के अंदर सत्य बात नहीं थी। If you read the entire Old Testament, और पुराने नियम को आप पूरी तरह से आप अगर पढ़े, you read about Satan in the book of Job, आप अय्यूब की किताब में शैतान का पाते हैं, and then you read about Satan in Genesis 3, the temptation in Eden, और अदन की वाटिका में उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर शैतान का उल्लेख हम पाते हैं, and you read about the origin of Satan in Isaiah 14, और यशायाह 14 के अंदर जो वास्तव में जो शैतान कैसे हुआ उसके बारे में and पढ़ते हैं, Ezekiel 28. और एजेकियल जो 28 अध्याय। But Satan himself is mentioned only twice or thrice. और पुराने नियम के अंदर शैतान का उल्लेख केवल 2 या 3 बार ही किया गया है। One is Job chapter 1. एक जो है अय्यूब 1 अध्याय में, That is in heaven, Satan is speaking to God to tempt, to put some स्वर्गीय trial स्थान- on Job. और स्वर्गीय स्थानों में अय्यूब के जीवन के बारे में शैतान यीशु परमेश्वर से बात करता है। And the other is in 1 Chronicles 21 where it says he tempted David. और एक पहला इतिहास 21 अध्याय के अंदर शैतान जो है दाऊद का परीक्षण करता है। And then another vision in heaven in Zechariah chapter 3 where Satan is accusing the high priest Joshua. और जकरिया 3 में और एक दर्शन के बारे में जहां शैतान जो है जो महायाजक जो जकरिया है उसको वो दोषी ठहरा रहा है। So you never find any human being in the Old Testament confronting Satan. और आप पुराने नियम में पाएंगे कि कोई भी नबी या व्यक्ति शैतान का सामना करते हुए आप नहीं The पाएंगे। enemies of the God's people were not Satan but Philistines and Amorites and Hittites and all these people. और परमेश्वर के लोग जो इस्राएली थे उनके शत्रु शैतान नहीं था, लेकिन जो अम्मोनी, फलिस्ती और जो अलग और जो प्रजा थी वो थे। They were fighting with flesh and blood throughout the history of Israel. और इस्राएल की सारी जो उनकी जो इतिहास था उसके अंदर मांस और लहू के साथ ही वो युद्ध कर रहे थे। Why did God not allow them to fight Satan? और क्यों परमेश्वर ने उनको शैतान का सामना करने की अनुमति नहीं Because दी? Satan would have crushed them. और तब वो शैतान को वो पूरी तरह से कुचल डालते। But now लेकिन अब Jesus said, if I cast out demons, then by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you. और यदि अभी हम दुष्टात्मा को अभी निकालते हैं तो तब परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आ पहुंचा है। So before the kingdom of God could come, Satan had to be defeated once for all. और इससे पहले कि परमेश्वर का राज्य आता, शैतान का राज्य पूरी तरह से पराजित So that करना he एक would बार have, के लिए अवश्य था। so that he would have zero power on God's people. और ताकि परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसका शून्य सामर्थ्य अधिकार हो This is सके। one
big difference between Old Testament and New Testament. और ये बहुत ही बड़ा एक भिन्नता है पुराने और नए नियम के बीच में। The first man who walked on the earth and confronted Satan directly was Jesus Christ. और पहला व्यक्ति जिसने शैतान का बहुत ही आमना सामना किया वो यीशु मसीह था इस धरती के ऊपर। After that, the apostles. और उसके बाद प्रेरित थे। And throughout these centuries, God's people have confronted Satan and cast him out. और इन सदियों के अंदर परमेश्वर के लोगों ने शैतान का सामना किया और उसको निकाला है। We have the authority to bind Satan's power. और हमें अधिकार दिया है कि शैतान की दुष्ट की ताकतों को हम बांध सके। They could not do that in the old covenant. और पुराने नियम में वो लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। And all these people who are seeking health and wealth, they are not able to bind Satan's power. और ये लोग जो सारे स्वास्थ्य और संपन्नता को खोजते ये शैतान की सामर्थ को बांध नहीं सकते थे। Binding Satan's power is not the same as casting out a demon. और शैतान की सामर्थ को बांधना वो दुष्टात्मा को निकालना उससे अंतर रखता है या वो अलग चीज है। Jesus once told the Pharisees in Matthew chapter 12. मत्ती 12 में यीशु ने एक बार फरीसियों से कहा, They said that you are casting out demons by the power of the prince of demons. In Matthew 12:24, the Pharisees said. और 12:34 के अंदर इस प्रकार लिखा है कि तुम जो है वो बेल्जेबुल या दुष्ट की ताकत उसके सरदार के सहायता से दुष्टात्मा को निकालते हो। And so Jesus said, और सो यीशु मसीह ने कहा, verse 27, 27 वचन, if I am casting out demons by the power of the prince of demons, Beelzebul, how is it your sons are casting out demons? अगर मैं बेल्जेबुल की जो है उसकी सहायता से दुष्टात्मा को निकालता हूं तो आप कैसे निकाल पा रहे हो उसको? So the Pharisees' sons were casting out some demons. और फरीसियों के जो संतान थे वो भी दुष्टात्मा को निकाल पा रहे हैं। Casting out demons is not the proof that we have power over Satan. और दुष्टात्मा को निकालना ये कोई साबिती नहीं है कि हमारा शैतान के ऊपर सामर्थ है। I'll show you that. मैं उसको बताऊंगा आपको। Matthew 7, मत्ती उसका 7 अध्याय verse 22. उसका 22। Many will come to me and say, Lord, we cast out demons in your name. और बहुत से मेरे पास आकर कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकाला है। And I will tell them, और मैं उनसे कहूंगा, I never knew you. मैंने तुम्हें कभी जाना ही नहीं I है। never had a personal relationship with you in your whole life. और पूरे आपके जीवन काल दरमियान आपके जीवन में मेरे साथ कोई आपका व्यक्तिगत संबंध ही नहीं था। But they cast out demons. लेकिन उन्होंने दुष्टात्माओं को निकाला है। That's amazing. ये बहुत ही अद्भुत बात The है। name of Jesus has such power यीशु मसीह के नाम में ऐसा अद्भुत सामर्थ है that even someone who does not have a personal relationship with Jesus can cast out a demon. कि यहाँ तक किसी व्यक्ति का यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं है फिर भी वो यीशु के नाम से दुष्टात्माओं को निकाल सकता That है। is not the same as binding Satan's power. और ये उसके समान नहीं जहां हम शैतान के सामर्थ को उसके राज्य को बांधते हैं। You can cast out 100 demons and Satan may still have power in your home. और आप बहुत हजारों जो शैतान दुष्टात्मा को निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी शैतान आपके घर के ऊपर जकड़ रख सकता है। There are many churches where the pastor casts out demons, but Satan has got power in that church. बहुत सारे प्रचारक हैं जो दुष्टात्माओं को निकालते हैं लेकिन शैतान उनके कलीसिया के ऊपर सामर्थ्य अधिकार रखता है। How do we know Satan has got power in that church? और कैसे हम जानते हैं कि शैतान उनकी कलीसिया के ऊपर अधिकार रखता है? Listen. सुनिए, The people in the church gossip and backbite against each other. वहां के कलीसिया के लोग एक दूसरे के बारे में बुरी बातें करते, पीठ पीछे गपशप करते हैं। Money is the big power of this world. और इस संसार में जो है पैसा बहुत ही And the people सामर्थ्य who है। sit there love money. और वहां पे जो लोग बैठते हैं वो पैसों से प्रेम करते हैं। They fight with each other. वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। A truly godly person never fights with flesh and blood. और एक सच्चा एक ईश्वरीय जन जो होता है कभी भी मांस और लहू के साथ युद्ध या लड़ाई नहीं करता है। So Satan is ruling in many churches where they are casting out demons. और जहां बहुत सारे दुष्टात्माओं को निकाला जा रहा है शैतान उन कलीसियाओं में राज कर रहा है There's आज। a lot of difference between casting out demons and binding Satan's power. और यहाँ दुष्टात्माओं को निकालना और शैतान के अधिकार या सामर्थ को बांधना उसके अंदर अंतर है। Let me show you binding Satan's power. और शैतान की सामर्थ को बांधना उसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। Matthew 18 verse 18 to 20. मत्ती उसका 18 उसके 18 से 20 वचन। To bind Satan's power शैतान की सामर्थ को बांधना anywhere, कहीं पर in भी a home or in a church, और घर में या कलीसिया में, you need to have two people who are united. और वहां पे दो लोगों की जरूरत है जो एकता में है। One person can cast out a demon, एक व्यक्ति दुष्टात्मा को निकाल सकता है but if two people are united, लेकिन अगर दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, for example a husband or wife उदाहरण के and रूप में wife पति और पत्नी united, एक है, they can bind Satan's power in their home. और वो अपने घर में शैतान की सामर्थ को बांध सकते Or हैं। two elders in a church who are united, और दो कलीसिया के अंदर दो प्राचीन जब एक हो जाते they हैं can bind Satan's power in a church. और वो कलीसिया के अंदर शैतान के सामर्थ को बांध सकते हैं। See this here. और यहाँ पर देखें,
It says in verse 18 about binding Satan's power and losing people on the earth. और यहाँ पे शैतान की सामर्थ को बांधना और धरती के ऊपर ईश्वर के लोगों को आजाद करने के बारे में लिखा When है। it says, whatever you bind on earth will be bound in heaven. और यहाँ लिखा है कि जो कुछ भी आप पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। I don't have time to show you all these verses, but there are 3 heavens. और मैं आपको ये मेरा समय नहीं, लेकिन 3 स्वर्ग उसके बारे में बताना चाहता हूँ। The first heaven is what you see, this universe. और पहला जो ये है स्वर्ग जो है इस ब्रह्मांड को जो आप देखते हैं, Billions and billions of miles. ये सैकड़ों सैकड़ों करोड़ों जो मीलों दूर ये है, That is the first heaven. ये पहला स्वर्ग है। The psalmist said, when I behold the heavens, the work of thy hand, that's the first heaven. और भजनकार इस प्रकार कहता है कि जब मैं तेरे हाथ की रचना को, इस ब्रह्मांड को, विश्व को देखता हूँ, उस On top, right on top is the third heaven. Paul said in 2 Corinthians 12, I was caught up to the third heaven. और दूसरा कुरिन्थी 12 के अंदर पौलुस लिखता है कि वो तीसरा स्वर्ग जहां पर उसको ले लिया गया था, That is उसके the बारे में लिखता है, presence of God. जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। That is the place from which Satan was cast out many millions of years ago. और बहुत ही सैकड़ों साल पहले जहां से शैतान को फेंक दिया गया था, वो जगह वो है। But Satan is not cast out to hell. He's not gone to hell. लेकिन वहां से शैतान को नरक में नहीं डाल दिया गया He's था। going to be thrown into the lake of fire, Revelation 20, only after Christ comes. और जैसे प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा है कि जब यीशु का आगमन होगा उसके बाद ही उसको नरक की झील में डाल दिया जाएगा। The book of Job, when Satan, God asked the devil, where are you coming from? He said, I'm roaming around on the earth. और अय्यूब की किताब में जब परमेश्वर ने कहा कि तू शैतान कहां से आता है, वो बोला मैं संसार में घूम कर आ रहा हूं। And he's called the prince of the power of the air. और इस संसार की जो सारी ताकत है वो उसके पास है। So he is in the second heaven. वो दूसरे जो स्वर्ग है उसके From अंदर वो the है। third heaven, he was cast down to the second heaven. और तीसरे स्वर्ग से उसको निकालकर दूसरे स्वर्ग में फेंक दिया गया। And in Revelation 12, you read that he'll be cast down to the earth one day before Christ comes. और प्रकाशित वाक्य 12 में पढ़ते यीशु के आगमन से पहले दूसरे स्वर्ग से And- उसको पहले स्वर्ग पे डाल दिया And जाएगा। Revelation 20, he'll be cast into the lake of fire. और प्रकाशित 20 अध्याय में वहां से उसको नीचे नरक की So, झील में डाल दिया these जाएगा। are the 3 stages of Satan's downfall. और यहाँ पर शैतान के 3 स्तर देखते हैं जहां पर वो नीचे गिरता है। Isaiah 14, from the third heaven to the second heaven. और यशायाह 14 के अंदर देख के कि तीसरे स्वर्ग से वो दूसरे स्वर्ग में गिरा। Revelation 12, from the second heaven to the earth. और प्रकाशित वाक्य 12 में दूसरे स्वर्ग से पहले स्वर्ग पर वो गिरता That है। is still in the future, और वो भी भविष्य में होने वाला है। when the great tribulation comes on this earth. और जहाँ पे महासताव इस And धरती then पर आएगा, उसके बाद Revelation 20, from the earth to the lake of fire. और प्रकाशित वाक्य 20 में वो संसार की इस धरती When- के ऊपर से नरक की अग्नि में डाल दिया When जाएगा। hell will also be cast into the lake of fire. और वहां से नरक के अंदर से हमेशा वो अग्नि की झील में डाल दिया जाएगा। But now, लेकिन अभी he is in the second heaven. वो दूसरे स्वर्ग में है। And that is the heaven spoken of here. Whatever you bind on earth will be bound in the second heaven. और यहाँ पर उसके बारे में लिखा है कि जब जो कुछ आप यहाँ बांधेंगे वो दूसरा जो स्वर्ग है वहां पर भी बांधा जाएगा। Nothing is going to be bound in the third heaven. और तीसरे स्वर्ग में कुछ बांधा नहीं जाएगा। What you bind on earth will be bound in the second heaven. और जहाँ धरती पर आप जो कुछ भी बांधते हो वो दूसरे स्वर्ग में बांधा जाता है। The second heaven is the headquarters of Satan. और दूसरा जो स्वर्ग है वो शैतान का हेडक्वार्टर्स है। From there, he sends out his demons to cause confusion in homes, churches, in the world. और वहीं से दूसरे स्वर्ग से वो अलग अलग जो दुष्टात्माएं हैं उसके सारे एजेंट को कलीसियाओं के अंदर, घरों के अंदर, अलग अलग संसार के अंदर भेजता है। To deceive people. और लोगों को धोखा देने के लिए। One day when you suddenly find, for no reason at all, your wife is terribly angry or your husband is terribly angry. और जब कभी आप अपने घर में देखें बिना किसी कारण के आपकी पति या पत्नी बहुत ही अचानक से गुस्सा हो Because जाते they're हैं, not walking with the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे You हैं। wonder what happened. और आप सोचेंगे क्या हुआ ऐसा, Why is my husband so upset? Why is my wife so upset? और क्यों मेरी पति या मेरी पत्नी क्यों इतनी उदास या मेरे से क्यों इतना गुस्सा है। There's a saying in English, like hell broke loose in my house. और इस प्रकार से इंग्लिश में कहते हैं कि जैसे कि नरक मेरे घर के अंदर पूरी तरह से फूट कर आ गया है। What should you do? तब आपको क्या करना है। You can't go near your partner because he's so upset, she is so upset. और आप अपने जो पार्टनर है उसके पास नहीं जाते क्योंकि वो आपसे बहुत ही क्रोधित या आपसे नाराज है। I tell people, the devil has come there. मैं आप लोगों से कहता हूं कि शैतान वहां चुका है। He is the author of all unrighteous anger. और वही है जो सारा अधार्मिक जो अपना गुस्सा है उसका वो करता वो है। It's no use going to your partner and trying to plead with him or her. और इसका कोई उपाय नहीं होगा कि आप अपने साथी या अपने पार्टनर जो उनके पास आप जाए और विनती करें। You go into another room, आप दूसरे कमरे में जाए, make sure your heart is clean, आप देखें कि आपका हृदय पूरी तरह से साफ शुद्ध है, and bind Satan's power in Jesus' name. और यीशु मसीह के नाम से शैतान की सामर्थ को बांधे, And you'll see results. और आप देखिए परिणाम क्या If you होता है। can find somebody else to pray with you, even better.
और आपके साथ अगर कोई भी अगर ये होता आपके साथ प्रार्थना करने के लिए है, Because in the new covenant, in the kingdom of God, power is always in unity. और नए नियम के अंदर सामर्थ जो है वो दो लोगों की एकता के साथ देखा In जाता the है। Old Testament, it was all God always worked through one person, और पुराने नियम के अंदर हमेशा परमेश्वर ने एक व्यक्ति के साथ काम किया, Noah, जो नूहा था, Abraham, अब्राहम, Joshua, यहोशू Moses, always one. और मूसा, हमेशा एक never व्यक्ति two, था, never two. कभी भी दो नहीं था। Samuel, शमूएल, Elijah. एलिया, When he dies, Elisha. और उसके बाद जब आता है एलीशा आता है, Never two. और कभी भी दो नहीं था। Because two people could not, even prophets could not work in the Old Testament together. They will fight. और पुराने नियम में दो नबी भी एक साथ में काम नहीं कर पाते थे, वो एक साथ झगड़ा करते थे। There are many churches like that today. और आज ऐसे बहुत सारी कलीसिया Where है, even two elders cannot work together. और जहां दो प्राचीन भी साथ में काम नहीं कर पाते हैं। That is the proof those elders have not come into the new covenant. और ये तो उसका प्रूफ है कि वो नए नियम में नहीं पहुंचे अभी They may तक, preach the kingdom of God, but they are not experiencing the kingdom of God. और वो परमेश्वर के राज्य में प्रचार जरूर करते, लेकिन उसका अनुभव वो नहीं कर पाते हैं। But in God's plan, लेकिन परमेश्वर की योजना में it is all one person throughout the Old Testament. और पुराने नियम में हमेशा एक एक व्यक्ति ही But रहा। as soon as you open the pages of the New Testament, लेकिन जब आप नई वाचा के अंदर you उस read पन्नों को पलटते हैं, Jesus sent out his disciples 2 by 2. और वहां यीशु मसीह को आप पाते हैं, उसके शिष्य को दो दो करके वो भेजता है। Luke chapter 10 verse 1. लूका 10 उसका एक वचन। He always sent his people 2 by 2. वहां हमेशा वो अपने लोगों को दो दो कर भेजता Never है, alone. कभी भी अकेला नहीं। There were 70 there. He did not send them to 70 places. He sent them to 35 places. और वहां पे 70 चेले थे, उनको 70 जगह अलग अलग नहीं भेजा, लेकिन 35 जगह पर ही उनको दो दो कर भेजा, Two had to go. और दो दो करके साथ And में when you जाना come था। to the Acts of the Apostles, you see Peter and John. और जब हम प्रेरितों के काम में आते तो पौलुस और यूहन्ना को हम Peter and- पत्रस और यूहन्ना को And देखते you हैं, see Paul and Barnabas. और पौलुस और बरनबास को देखते हैं। Always two. हमेशा दो व्यक्ति को देखते हैं। Why? क्यों? Because of what we read in Matthew chapter 18, और क्योंकि जो हमने मत्ती 18 अध्याय में जो हमने verse पढ़ा, 20. 20 वचन, If 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. और वहां लिखा है क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां उनके बीच में मैं हूं। Lord, what if there's only one person? और प्रभु यदि एक ही व्यक्ति है तो क्या उसका? Yeah, he can overcome in his personal life. वो अपने व्यक्तिगत जीवन में जय पा सकता I है। don't need another person to overcome in my personal life. मुझे दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में पाप के I ऊपर मैं can विजय be प्राप्त कर all सकूं। alone. मैं अकेला हो सकता Christ हूं। dwells in me. यीशु मसीह मेरे I'm जीवन filled with the में Holy Spirit. पवित्र आत्मा से मैं भरा हुआ I हूं, can confront Satan for my personal life. और मेरे व्यक्तिगत जीवन के साथ मैं परमेश्वर को जो है शैतान का सामना He कर can have सकता हूं, zero power over me. और उसका मेरे जीवन के ऊपर He शून्य सामर्थ्य है, he cannot trouble me in any way. और किसी भी रीत से वो मुझे समस्या नहीं दे He सकता cannot है। discourage me. वो मुझे निराश नहीं कर He cannot सकता, condemn me. वो मुझे दोषित He नहीं कर cannot सकता, defeat me. वो मुझे पूरी तरह से हरा भी नहीं सकता। But when it comes to exercising power in a home, लेकिन जब मेरे घर के अंदर सामर्थ को व्यवहारिक रूप Or में in a लाना होता है, church, कलीसिया के अंदर, there must be two, और वहां पर दो व्यक्तियों की जरूरत है, husband and wife. पति और पत्नी। That is why it's so important in a home for husband and wife to be united. और इसलिए पति पत्नी बहुत ही महत्वपूर्ण हो कि वो एक हो जाए। And that's why right from the time of Adam and Eve, Satan tried to separate husband and wife. और यहाँ इसलिए आदि से ही शैतान जो है आदम और हवा को वहां से एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करता है। When Eve got separated from God, she got separated from Adam also. और जब हवा परमेश्वर से अलग हो गई तब वो आदम से भी अलग हो गई, And the devil could come through. और तब वो बीच में See, शैतान आ गया। when you and your wife are united, और आप देखिए कि जब आप और आपकी जो पत्नी है एक होते हैं, जब ही, the door to your home is shut. और आपका जो घर का जो दरवाजा है वो हमेशा बंद रहता And the है। devil, like Adam and Eve, tries to separate you. और जब शैतान जो है आदम हवा को जैसे बहकाने की कोशिश करता है, वो आपके लिए भी करेगा। He'll put a little misunderstanding in your mind against your husband or wife, और अब पति पत्नी के बीच में थोड़ी सी गलत फहमी आपके बीच में डालेगा, पति पत्नी में, or a little suspicion. और थोड़ी सी शंका या Your husband is going around with some other man, some other woman. और ऐसी थोड़ा सा शंका डालेगा कि आपका पति जो है किसी स्त्री के साथ शायद जा रहा It है। may be absolutely false. वो शायद पूरी तरह से But little गलत होगा, suspicion. लेकिन वो एक There ऐसे are, संदेह को डालते there are हैं। many married women like that. और बहुत सारे विवाहित स्त्रियां ऐसी They're हैं, always 24 hours suspicious of their husbands. वो हमेशा 24 घंटे हमेशा अपने पति के ऊपर शक करते रहते हैं। Even though the husband may be the purest man. और यहाँ तक कि उनका पति शायद बहुत ही शुद्ध व्यक्ति होगा, Who puts that suspicion in their mind? वो जो शक है कौन उनके The मन में devil लाता wants है? to bring a little gap
between that husband and wife. और शैतान जो है थोड़ा सा जो गैप है वह पति और पत्नी के बीच में लाने की कोशिश करता Immediately है he can enter in and destroy your children. और तुरंत ही वहां से वो अंदर प्रवेश करके आपके बच्चे हैं उनको पूरी तरह से नाश कर देता है। Many parents say, what to do, Brother Jack, my children have gone astray. बहुत सारे माता पिता कहते हैं कि हम क्या करें भाई जैक, हमारे बच्चे तो भटक I गए ask हैं। them, who opened the door मैं- for the devil to come into your house? और मैं उनको पूछता हूं कि किसने उन दरवाजे को खोला जिस दरवाजे से शैतान आपके घर में अंदर आया है। You and your wife quarreled and opened the door and the devil came in. और जब आप पति और पत्नी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और आपने उसके द्वारा And दरवाजे को खोल you दिया say, शैतान oh, के what लिए, to do for my children? और आप सोचते हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या करूं मैं, अब Blame yourself. अपने आप को दोषी ठहराए। You opened the door for the devil and then you wonder why the devil's messed up your home. और आप शैतान के लिए खुद ही अपने आप से दरवाजा खोलते और फिर आप सोचते हैं क्या शैतान ने क्या कुछ मेरे जीवन Haven't में you किया read है। in Genesis chapter 3 that as soon as the devil came, Adam began to accuse his wife? और क्या आप जानते नहीं कि उत्पत्ति 3 अध्याय के अंदर जैसे शैतान का आना वहां पर होता है तुरंत आदम अपनी पत्नी को दोषी ठहराता The है devil is the accuser of all people. और शैतान जो सारे लोगों को दोष देने वाला And he है। puts that spirit of accusation in a husband and a wife. और वही जो शैतान है पति और पत्नी में दोष लगाने की आत्मा को डालता है। The world is full of husbands and wives who are pointing their finger at each other and say, you did this or you said this happened because of you. और संसार ऐसे बहुत सारे पति पत्नियों से भरा हुआ जहां पे पति और पत्नी एक दूसरे के सामने अपनी एक दूसरे की गलतियां निकालती, तूने ये किया, ये मैंने किया, इस तरह से। It's not just unbelievers, ये केवल अविश्वासी नहीं है, believers, यहाँ तक विश्वासी, CFC believers. सीएफसी You विश्वासी, did this. और ये तूने किया, ये मैंने नहीं किया, Because you did this happened like this. और तूने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ है। And the demons say, wonderful. और फिर वहां पे जो दुष्ट आत्मा होता है वो You शैतान are, कहता है the बहुत ही demons say, अद्भुत, you are doing our job for us. Thank you so much. और वो कहता है भाई तू तो मेरा जो काम है वो तू ही कर रहा है, And बहुत the धन्यवाद gap तेरा। becomes wider and wider. और वो जो गैप है वहां जो दूरी And और the बढ़ती जाती demons है rush into your home. और वहां दुष्ट जो है शैतान उसके अंदर और भी आ जाते हैं। Maybe you're strong enough to resist the demons, but not your children. और यहाँ तक कि शायद आप शैतान का सामने के लिए करने के लिए ताकतवर है पर आपके And बच्चे को your नहीं, children go astray. और आपके बच्चे भटक जाते They go हैं, into the world. संसार में चले जाते They start हैं watching filthy movies. और बहुत ही अश्लील बातें वो देखने लग जाते हैं, They try out alcohol and drugs. वो शराब और ड्रग्स लेने लग जाते हैं, And they go into so many bad habits. बहुत बुरी आदतों में वो चले They जाते make हैं bad friends instead of the godly friends in the church. और कलीसिया के अंदर ईश्वरीय मित्र बनाने से वो And संसार you के say, मित्र बना "Oh, लगते what shall I do?" You say, my children are going astray. और आप सोचते हैं कि मैं क्या करूं, But- मेरे बच्चे तो दूर जा रहे, भटक रहे हैं। Never forget you opened the door with your fighting with your husband and और wife. कभी ये ना भूले कि आपने ही अपनी पत्नी के झगड़े के द्वारा उस दरवाजे को शैतान के लिए खोल दिया। You think you've understood it today? और क्या आप सोचते हैं कि आपने इसको समझ लिया है आज? You will find out in the next 1 year whether you've understood it or not. और आप आने वाले 1 साल में इसको जान लेंगे कि इसको आपने समझा है या नहीं। The devil knows if two people are united. शैतान जानता है कि जब 2 लोग एक हो जाते In हैं Christ. यीशु मसीह में, Christ is in the midst. और यीशु मसीह उनके बीच में है, Matthew 18:20. और मत्ती 18:20 के And अनुसार, then और वहां verse 18, what they bind on earth will be bound in the heavenlies. और जब ऐसा होता है जब वो संसार में धरती पर जो बांधते हैं वो स्वर्गीय स्थानों में And वहां पर भी बांधा the जाता devil है, will not be able to put a foot inside your home. और तब शैतान आपके घर में कदम तक नहीं रख But पाएगा। it's important, verse 19, Matthew 18:19, the two of you must be agreed. लेकिन महत्व की बात ये महत्वपूर्ण ये है कि 2 बातों को सहमत होना एक साथ जरूरी है। And the word agreed is from the musical word symphony. और जो सहमत होना जो शब्द है वो अंग्रेजी के अंदर सिम्फनी एक You शब्द know, से आता है। if a piano is playing on one scale अगर आप जाने कि एक पियानो अगर बज रहा है वो एक ही and the धुन के violin is ऊपर बज playing रहा on है another scale, और वायोलिन जो है वो दूसरी धुन पर बज रहा है, that's a jarring sound. वो बहुत ही अलग, बहुत ही ऐसा अच्छा सुनाई नहीं They देगा। must play on the same scale. वो एक ही धुन पर दोनों को बजना होगा। There may be different notes to give a melody there and support for it, but it must be the same scale. वो एक ही धुन पर हो सकता है कि अलग अलग जगह पर वहां पे अलग अलग नोट्स दे सकते हैं, लेकिन वो एक ही If they धुन पर होना है। play on a different scale, it's confusion. अगर वो अलग अलग बज रहे हैं तो बहुत ही वहां पर गड़बड़ी हो That's the जाएगी। trouble with many husbands and wives. और यही आज बहुत सारे पति और पत्नी की समस्या They है, are playing on different scales. वो अलग अलग धुन पर बजा रहे हैं Disharmony. और वहां पर कोई भी एकता नहीं But है। if two of you are harmonious लेकिन जहां 2 and एक हो जाते in हैं symphony, और सिम्फनी वहां जाती है, then तब it says here, वहां लिखा है, whatever they ask will be done by my Father. और तब लिखा जब जो कुछ भी वो मांगेंगे मेरा पिता उनके लिए वो कर देगा। Before you pray, इसके पहले कि आप प्रार्थना करें, see if you're in harmony with your wife. or ये आप husband. जांचें कि आप अपने पति या पत्नी के साथ एकता में है या नहीं। You say, well, she's always so uncooperative, it's her fault.
और आप हमेशा कहेंगे मेरी पत्नी हमेशा मुझे सहयोग नहीं देती, उसका हमेशा उसकी ही गलती You हमेशा है। don't worry about that. Make sure your own heart is clean. और उसकी चिंता न करें, आप ये जाने कि आपका जो हृदय है वो शुद्ध है। See, we are supposed to draw our partner to the Lord, not push. और हमें जो है हमारे जो पार्टनर है उनको खींचकर हमें उनको परमेश्वर के You पास don't लाना, have to धक्का नहीं मारना है। Push your husband, push your wife towards the Lord. No. और आपको धक्का मारना नहीं है परमेश्वर की और अपने पति या पत्नी You को। know the difference between pushing a person and drawing a person. और आप जानते हैं धक्का मारना और धीरे से उनको लेकर आना, उसके बीच में अंतर है। The best example of drawing is a magnet. और आप उनके पास में खींचना, उसका मतलब यह है कि एक चुंबक जो होता है, Here's a magnet. यहाँ एक चुंबक है And that iron piece is over there. और यहाँ पे लोहे का कुछ धातु यहाँ पर पड़ा हुआ है And the magnet just pulls it. और वो चुंबक उसको पूरी तरह से खींच The लेता magnet है is not trying to push it. और वो जो चुंबक उसको आगे धकेलता नहीं Very है। powerful magnet here. ये बहुत ही सामर्थ्य ये And चुंबक that है iron piece automatically comes to that. और वहां पर जो लोहे का जो धातु है तुरंत अपने आप से वहां पर चिपक जाता That है। is how you must draw your husband or wife to the Lord. और इसी प्रकार से आपके पति या पत्नी को आपको खींचकर परमेश्वर की ओर लाना है। So many people are pushing and shoving and yelling and shouting. और बहुत सारे लोग अपने पति पत्नी पर चिल्ला रहे हैं, उनके ऊपर वो बड़े बड़े शोर से आवाज कर रहे You हैं। know what Jesus said? यीशु मसीह ने क्या कहा? I, if I am lifted up, will draw all men unto myself. और वहां लिखा है कि यदि मुझे ऊंचे महिमा बंद किया जाएगा तो मैं सारे लोगों को अपनी ओर खींचूंगा। That's what he said. यही उसने कहा I, if है। I am lifted up, will draw all men unto myself. और उसने कहा कि यदि मैं ऊपर ऊपर उठाया जाऊं महिमा में तो मैं Jesus लोगों को अपनी ओर draws खींचूंगा। people. He doesn't push people. और लोग परमेश्वर जो लोगों को अपनी ओर खींचता है वो धक्का नहीं, धकेलता नहीं You है। read that in John chapter 12. और यूहन्ना 12 अध्याय में हम इसको पढ़ते So हैं। that is God's way. ये परमेश्वर का तरीका He है, draws people to himself. वो लोगों को अपनी ओर लेता या खींचता है। John 12:32. यूहन्ना 12:32। If you lift up Christ in your life, यदि आप अपने जीवन में यीशु मसीह को ऊपर if उठाते Christ हैं, is lifted up in your life, यदि परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में ऊंचा उठता है, people will be drawn to him through you. तब लोग जो है परमेश्वर की ओर खींचे चले आएंगे आपके जीवन के द्वारा। What a wonderful verse John 12:32 और is. ये यूहन्ना 12:32 कितना अद्भुत वचन ये है। I don't try to push people to Christ. I've never done it. और मैं लोगों को परमेश्वर की ओर धकेलता नहीं हूँ। Those are people who don't know the Lord. और ऐसे लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, Foolish people. ये मूर्ख लोग हैं। They give money to people to bring them to Christ. वो लोगों को पैसा देते ताकि उनको पैसे के द्वारा They give परमेश्वर free के पास scholarship लाए। to bring them to वो Christ. फ्री स्कॉलरशिप देते ताकि उनको यीशु मसीह के पास No. लाए। ऐसा नहीं है। If Christ is lifted up in my life, यदि यीशु मसीह मेरे जीवन में ऊंचे पर उठता है like a magnet, we will draw people to the Lord. और वो चुंबक की तरह हम लोगों को परमेश्वर की ओर खींच ले आएंगे। In the last 45 years that we've had CFC churches, और जो पिछले जो 45 साल जो थे वो CFC कलीसिया में, we've never had big conventions where we try to push people to Christ. और बहुत बड़ी ऐसी सभाएं या क्रूसेड हमने नहीं किया जहां पर हम लोगों को धकेलने की, परमेश्वर की ओर धकेलने की We have कोशिश never करें। said, come forward and sign a decision card and say you have accepted और Christ. हमने Not कभी even लोगों once. एक भी बार हमने कभी ऐसा लोगों से नहीं किया कि आगे आके निर्णय का कोई कार्ड भर के दो कि आपने अपने यीशु मसीह को अपनाया We है। lift up Christ. हम यीशु मसीह को ऊंचा उठाते And we हैं wait for people to be drawn to him. और हम राह देखते हैं कि परमेश्वर इसके द्वारा लोगों को अपनी ओर खींचे। I remember once in one conference in South India, और दक्षिण भारत के अंदर मुझे याद है कॉन्फ्रेंस के दौरान one man came to me एक व्यक्ति मेरे पास and आया said, Brother Zach, I want to join your church, CFC. और उस भाई ने मुझसे कहा, भाई जैक मैं आपके कलीसिया आपके CFC कलीसिया से जुड़ना चाहता हूँ। Why? मैंने कहा क्यों? I'm not excited when somebody says they want to join our church. और मैं इससे खुश नहीं होता जब लोग मुझसे कहते हैं कि मैं CFC कलीसिया में जुड़ना चाहता Because हूँ, I'm not like other pastors. क्योंकि मैं और पास्टरों के समान नहीं I want to हूँ। know, why do you want to come? और मैं जानना चाहता हूँ क्यों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। He said, because I'm fed up of my Pentecostal church. क्योंकि मैं अपने पेंतिकोस की कलीसिया से थक चुका हूँ। I said, don't come, you stay there. और मैंने कहा भाई वहीं पे रहे, यहाँ पर मत आइए। You come and join us when you're fed up with yourself, not with somebody else. और आप तभी हमारे साथ जुड़ना जब आप अपने आप से थक जाए, किसी कलीसिया से नहीं। When you're fed up with the Pentecostal church, don't come. यदि आप पेंतिकोस की कलीसिया से थक You जाए stay तो मत there. यहाँ पर आए, आप वहीं पर रहे। Stay there 20 years. 20 साल वहीं पर आप रुके Till रहे। the day comes when you're fed up with your own defeated life. और जब तक कि वो दिन ना आए जबकि आपके पराजित खुद के जीवन से आप And you're थक न not fed जाए। up with others, but you're fed up with yourself. और जब तक कि आप औरों से नहीं लेकिन अपने खुद के जीवन से Then जब तक come थक न and join जाए, us. तब आकर हमारे साथ जुड़ Because जाना। we are gathering together people who are fed up with themselves, not क्योंकि- those who are fed up with others. हम तो ऐसे लोगों का झुंड है जो औरों से थके हुए नहीं लेकिन अपने खुद के जीवन से हम थके हुए हैं। If someone says, I'm fed up with my wife, Brother Zach, I want to join CFC, I say, don't come. और कोई व्यक्ति ऐसा कहता है मैं अपनी पत्नी से थक चुका हूं, मैं CFC जुड़ना चाहता हूं, मैं कहता हूं भाई मत आना यहाँ। When you're fed up with yourself,
then come to the church. और जब आप अपने आप से थक जाए पूरी तरह से तब यहाँ पर आइए। You say, where do you get that? और आप सोचेंगे कि ये कहाँ हम देखेंगे Matthew इसको? chapter 11 मत्ती उसका 11 अध्याय and verse 28. उसका 28 वचन, How does it say? यहाँ किस प्रकार Come लिखा to है? me, those who are weary and heavy laden, I'll give you rest. हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। Not those who are fed up with others. वो लोग नहीं जो औरों से थक चुके हैं, Those who are weary and heavy laden with their own sin. और जो लोग अपने खुद के सिन से बोझित हो चुके हैं, परिश्रम कर रहे हैं उसके अंदर। I could paraphrase that. Lord Jesus saying, come to me all of you who are fed up with your defeated life. Come, I'll give you rest. अपने शब्दों में इसको अनुवाद करके मैं कहूं तो जो लोग अपने खुद के अपने जीवन से पापों से पूरी तरह से थक चुके, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें He विश्राम never जीवन said, दूंगा। all of you who are fed up with the Pharisees, come to me. और उसने ये नहीं किया वो सारे लोग जो फरीसी से थक चुके मेरे पास आओ, नहीं। Don't come. You stay in that synagogue with the Pharisees. मत आओ यहाँ पर, वहीं पर उस आराधनालय में उस फरीसी के साथ आप रहो। When you get fed up of your own defeated life, then come to me. और जब आप अपने खुद के पराजित जीवन से थक जाते तब आप मेरे पास आओ। And those are the best people in the church. और वही जो है सबसे सर्वोत्तम लोग कलीसिया के होते हैं। They are not fed up with anybody else. They are fed up with themselves. वो और लोगों से थके हुए नहीं होते, लेकिन खुद के जीवन से थके हुए होते I हैं। was fed up with my own defeated life. और मैं अपने खुद के जीवन से पूरी तरह से थक चुका था। I was so fed up with my defeated life that I said, Lord, I will stop preaching. I will give up full-time work. I will find some job and just do some ordinary job. और मैं अपने जीवन से इतना थक चुका था कि मैंने कहा, प्रभु मैं प्रचार करना बंद कर दूंगा, सेवकाई बंद कर दूंगा और कोई नौकरी ढूंढकर वो करने लगूंगा। If you don't change my life, और यदि प्रभु तू मेरे जीवन को नहीं बदलेगा I am not तो going to preach anymore. I'm finished. और मैं यहाँ पर आगे और भी प्रचार नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे अंत कर दूंगा सब। In 1974, I was like that 45 years ago. और 1974 जो 45 साल पहले की बात ये And है। when I was right at the bottom और जब मैं पूरी तरह से पूरे वो बॉटम of में जब था the pit, defeated, और उस गड्ढे में पूरी तरह से तलवे में जब मैं पहुंच गया था, पूरी तरह से हार कर, fed up with myself, not with other people, और लोगों से थक कर नहीं, अपने आप से पूरी तरह से थक गया था। the Lord met with me, और तब परमेश्वर मुझको मिला filled me with the Holy Spirit, और उसने अपने पवित्र आत्मा से मुझको भर दिया। and it was like a rocket coming up from there. और उस गड्ढे से एक रॉकेट के समान वो ऊपर लेकर आया मुझे। And that's what God did यही परमेश्वर ने मेरे लिए किया। in January 1975. और जनवरी 1975 के अंदर He suddenly filled me with the Holy Spirit, और उसने अचानक से मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। and 7 months later, और 7 महीने के बाद CFC was born in our house. और हमारे घर के अंदर CFC कलीसिया And का from जन्म there, हुआ। it's gone on around the world. और वहां से आगे बढ़कर ये और संसार के अलग अलग भागों में It पहुंच was not गए। my work. ये मेरा कार्य नहीं है। The kingdom of God had come with power, परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आ पहुंचा, not with signs and wonders, और चिन्ह और चमत्कार के साथ but नहीं, with righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा जो धार्मिकता है, मेल मिलाप, शांति और आनंद के साथ। It did not make me wealthy. और इसने मुझे बहुत धनवान नहीं बना दिया, It did not give me perfect health. और उसने मुझे बहुत ही अच्छा एक स्वास्थ्य सिद्ध स्वास्थ्य नहीं दिया, It made me fit enough to travel to the age of 80. लेकिन इतना स्वास्थ्य तो मुझे बना दिया कि 80 साल की उम्र में भी मैं यात्रा कर सकूं। But not that we have such perfect health, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ही सिद्ध स्वास्थ्य मिल चुका है, but enough to serve the Lord. लेकिन पर्याप्त है परमेश्वर की सेवा करने के Even लिए। Paul had a thorn in the flesh, यहाँ तक कि पौलुस जो उसके शरीर के अंदर एक कांटा चुभाया गया but he था, served the Lord with the thorn in the flesh. लेकिन उस कांटे के साथ वो परमेश्वर की सेवा कर रहा था। And I have my weaknesses, physical weaknesses, but I will serve the Lord. और मेरी शारीरिक कमजोरियां है, लेकिन उसके साथ मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। I'm not going to say, Lord, I got an ache here, I got a pain there, I can't serve you. और मैं ये नहीं कहूंगा, प्रभु मुझे यहाँ पर दर्द है, यहाँ पे चोट है, प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं करूंगा। You go to work when you have aches and pains. और आपको जब दर्द होता है तब भी फिर भी आप काम पर So जाते I'm going हैं, to serve the Lord. I'm going to serve the और Lord. मैं भी even- परमेश्वर की सेवा करूंगा। So it's not health and wealth, और ये स्वास्थ्य, ये संपन्नता नहीं है, but it's the kingdom of God, righteousness, peace, and joy with power. और ये परमेश्वर का राज्य है जो पवित्र आत्मा के द्वारा And धार्मिक that is the gospel we preach. और यही सुसमाचार का हम प्रचार Seek करते the हैं। kingdom of God first. परमेश्वर के राज्य को सर्वप्रथम Seek आप for खोजें। righteousness first in every area of your life. आपके जीवन के हर एक क्षेत्रों के अंदर परमेश्वर की धार्मिकता को आप खोजें, Get rid of all your debts to people. और आपके जो कर्ज जो लोगों के प्रति उस सारे से आप छुटकारा प्राप्त करें। Here is a command which many believers do not obey. तो यहाँ पर एक आज्ञा है जो बहुत सारे मसीह जो लोग हैं, विश्वासी, उसकी वो पालन नहीं करते हैं। Romans 13, रोमियो 13 अध्याय verse 8. वचन 8। Owe nothing to anyone except to love one another.
Romans 13 verse 8. रोमियो 13 उसका 8, आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात में किसी के कर्जदार न रहो। Sometimes in a difficult situation you may have to borrow because you don't have any money. और हो सकता है कि कठिन हालातों के अंदर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कर्ज या किसी से उधार लेना पड़े। Don't borrow to buy something which you can buy later after earning that money. लेकिन कभी आप उधार किसी से तब तक न ले जब तक कि आप उसको उधार लेकर लौटा ना सके उसको। I have never in my life bought anything with this scheme of buy now and pay later. और मैंने मेरे जीवन काल में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी ऐसी स्कीम के द्वारा कि अभी खरीद लो पैसा बाद में देना। I said I will save that money and then buy it. और मैं ये कहता हूँ कि पहले मैं इस पैसों को जमा करूंगा फिर मैं उसको That फिर is how my खरीदूंगा। wife and I have bought everything in our house और इसी प्रकार से मैंने और मेरी पत्नी ने सब कुछ हमारे घर में खरीदा। until we could afford a washing machine. We washed with our hands. और जब तक हमारे पास वॉशिंग मशीन लेने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे हाथों से कपड़े धोते थे। We never said we'll buy it now and pay later हमने कभी ऐसा नहीं कभी हम खरीद लेते पैसे बाद में देंगे to make life easier for us. ताकि हमारा जीवन आरामदायक हो जाए। If I did that even with one thing, I would be in thorough debt today. और यदि एक चीज में भी अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं कर्ज में होता। I have a testimony. 80 years in my life, I've never been in debt for 1 rupee to anybody in my life. और मेरे 80 साल के जीवन काल में मेरी ये गवाही है कि 1 रुपये का कर्ज भी मेरा किसी और के प्रति नहीं it है। says here, owe nothing to anyone. और यहाँ पे लिखा है किसी के भी कर्जदार न बनो। And if you have to borrow, pay it as soon as possible. यदि किसी से उधार लेना होता है तो जल्द से जल्द उसको आप लौटा दे। And don't buy now to pay later. और अभी खरीद के बाद में पैसा दे ऐसा मत करे। Wait 2 years and then buy it. 2 साल तक आप राह देखे उसके बाद कुछ खरीदे। And I have never regretted that. और मैंने इसके बारे में कभी मैंने अपने आप को दिलगीर नहीं किया है। This covetousness, I want it now. और ये लालच जो हमारे अंदर होता है कि अभी मुझे ये सारी चीज Why do चाहिए। you want it now? और क्यों आपको चाहिए? Because that family has got it and that family has got it and that family has got it. और क्योंकि ये परिवार के पास उस परिवार ये परिवार के पास वो चीज है। Okay, admit that I'm not so wealthy like them. I have to wait a little to buy it. और शायद मैं उन परिवारों जैसा धनवान नहीं हूं मुझे रुकना पड़ेगा उन चीज को खरीदने के लिए। These are the little ways in which the devil gets power over you. और ये छोटी छोटी बातें जिसके द्वारा शैतान आपके ऊपर सामर्थ रखता है। Because if you're living in debt, you're living in sin. और यदि आप कर्ज में जीवन जीते हैं तो आप पाप में जीवन जी Because रहे the हैं। Bible says you should not owe anybody anything. क्योंकि वचन में लिखा है कि किसी के कर्जदार मत बने। It doesn't say don't borrow. और यहाँ पे ये नहीं लिखा है उधार मत लेना। Sometimes in an emergency, some sudden medical expense, you may have to borrow. Fine. और कभी ऐसी इमरजेंसी हालातों के अंदर कई बार आपको उधार लेना पड़ सकता है। Pay it back. लेकिन तुरंत उसको चुका दे। Cut down some expense in your home. और आपके घर में और दूसरे खर्चे उसको कम कर दे। We have had different brothers come to our church in Bangalore who are in debt. और हमारे बेंगलोर कलीसिया में ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग लोग आए जो कर्ज में थे। And I tell them, मैं उनको कहता हूँ if you allow me to look into your finances, I will froze. और शैतान जो कलवरी के ऊपर क्रूस के ऊपर He वो has no हराया place in the गया। kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में उसका कोई स्थान नहीं है। This can happen in any church. ये कोई भी कलीसिया में हो सकता है। See, for a long time I was away from CFC Bangalore. बहुत समय से मैं CFC कलीसिया से दूर था। I heard when Bangalore. I came back, a lot of people are in debt. और जब मैं वापस आया तो बहुत सारे लोग कर्ज में थे। So one day एक दिन I made an announcement, मैंने एक सूचना वहां किया। just 1 or 2 years ago. 1 या 2 साल पहले की बात है ये। Anybody here who has borrowed more than 1,000 rupees from you, you please come and tell me. और यहाँ मैंने ये सूचना इस प्रकार की कोई भी व्यक्ति ने यदि 1000 रुपया किसी को उधार दिया है तो वो व्यक्ति आकर No, मुझसे कहे। not the one who's borrowed, the one who's given the loan, you tell me. और जिसने उधार लिया वो नहीं, जिसने उधार दिया है वो Because आकर मुझको बताए कि मैंने उधार दिया The है। one who's borrowed may not tell the truth. और जो जिसने उधार लिया है वो शायद सत्य नहीं बोलेगा। The one who loaned the money, लेकिन जिसने उधार दिया you है come and tell me. वो सत्य बोलेगा। मुझे आकर वो कहेगा। You know what I discovered? और मैंने क्या ढूंढ निकाला? Somebody's borrowed 30,000. किसी ने 30,000 वहां से उधार Somebody's लिया है। borrowed 80,000. किसी ने 80,000 उधार लिया है। Somebody bought a motorbike and never paid for it for 5 years. और किसी ने उस उधार पैसे से Second hand मोटर बाइक motorbike. लिया, सेकंड हैंड बाइक लेके और कभी उसका पैसा नहीं चुकाया। I say, what are you guys sitting in CFC listening to? और मैंने कहा भाई तुम CFC कलीसिया में बैठकर क्या कर रहे हो ये सब कुछ सुनकर? Pay it back. उसको पूरी तरह से I चुका want to दे। get all those names this afternoon. और आज दोपहर में मुझे सारे नाम चाहिए। You know what one person did? एक भाई ने क्या किया? This is Sunday. और ये रविवार था। He immediately went on his phone and connected to his bank account and paid the debt. और तुरंत जब ये सूचना चल रही थी उसने तुरंत ऑनलाइन उसका पेमेंट कर दिया वहीं पर मोबाइल से। And told that person, I paid it to your account. और उसको भाई को कहता है भाई मैंने तेरा पैसा चुका दिया है। Why did he have to wait till Zach Punan found out? He was more scared of Zach Punan than Almighty God. और उस भाई को जैक पुनन तक कहे वो सूचना तक क्यों राह देखनी पड़ी? क्योंकि क्या वो And one by one, all those debts, 80,000, 30,000, every was cleared. और एक एक करके वो 30,000 80,000 का कर्ज लोगों ने चुका दिया।
The man who did not pay for that motorbike paid it. और वो मोटरसाइकिल का जिसने पैसा नहीं उसको भी उसने चुका दिया। I learned something that day. और उस दिन मैंने कुछ सीखा। I told people, if you don't fear God, second best is you fear me. मैंने लोगों को कहा यदि आप परमेश्वर का भय नहीं मानते तो उसका दूसरा उत्तम ये होगा Best कि आप is you मेरा भय fear, माने। best is you fear God. सबसे उत्तम ये है कि आप परमेश्वर का भय माने। But in this church, if you don't fear God, you better fear me because we are going to live according to God's word here. लेकिन यदि इस कलीसिया में आप परमेश्वर का भय नहीं मानते तो दूसरा सर्वोत्तम ये होगा कि आप मेरा भय माने, क्योंकि हम परमेश्वर के मापदंडों के अनुसार जीना चाहते इस कलीसिया में। How did that fellow pay that money through this phone? Same afternoon. और उसी दोपहर में कैसे इस भाई ने तुरंत पैसा उसको मोबाइल से चुका दिया? He must have thought, if I keep it in the bank little more, I'll get few extra rupees interest. और उस भाई ने सोचा होगा इसको बैंक में पैसे पड़े रहने दूंगा तो और थोड़ा सा ब्याज उससे मैं So मिलेगा he's मुझको। not asking for it. Let me keep it for one more month. और वो दूसरा भाई मांग नहीं रहा है तो एक महीना और रख देता हूँ पैसे। Fixed deposit interest is 7%. और- I can get और फिक्स little डिपॉजिट का interest. जो ब्याज जो होता है वो तो 7% मिलता है। I will earn another 100 rupees this month. और ये महीने में 100 रुपया और अधिक कमाऊंगा मैं He उससे। can wait. वो भाई तो राह दे सकता है। This guy is losing the blessing of God. He's not worried about that. वो ये लेकिन ये भाई परमेश्वर की आशीष को गवा रहा है, उसको वो नहीं जान पा रहा है। This is not some dead denominational church. This is CFC. और ये कोई मृत कलीसिया के बारे में नहीं, सीएफसी कलीसिया के That बारे में बात कर shows रहा हूँ। how so little fear of God there is even in many CFC churches where they listen. और ये बताता है कि यहाँ तक कि सीएफसी कलीसिया में जब इतना अधिक वचन सुनते लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। That is why we need some fearless elders in our churches who don't care for the opinion of men. और इसलिए हमारे कलीसियाओं के अंदर ऐसे निर्भय प्राचीनों की जरूरत है, वो लोगों के मत या राय की कोई चिंता नहीं Who करेंगे are not seeking the reputation for being a gentle brother. और वो अपनी ऐसी जो प्रतिमा बनाते हैं लोगों के सामने कि मैं बहुत कोमल या दयावान व्यक्ति हूं, ऐसी प्रतिमा बनाने की चिंता नहीं करते। When it comes to money, I don't want a reputation as a gentle brother. और जब पैसों का मामला आता है तो मुझे ऐसा कोई नाम या सम्मान नहीं चाहिए। Not because I hate them, because I don't want the devil to have power over their life. और इसलिए नहीं कि मैं लोगों से नफरत करता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि शैतान उनके जीवन के ऊपर कोई सामर्थ न रखे। Brothers and sisters, this is the good news. और भाइयों और बहनों, ये अच्छा The सुसमाचार kingdom आपके of लिए है। God has come with power. परमेश्वर का राज्य सामर्थ के साथ आ And पहुंचा we are है। not going to let Satan have power in our home or in our church. और हमारे परिवार और कलीसिया में शैतान को हम अनुमति नहीं देंगे कि वो हम पर सामर्थ रखे। And those who have ears to hear, let them hear. और जिन लोगों को सुनने के लिए कान है वो आज सुन ले। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, please help us to live in this wonderful victory that Jesus won over the devil. ओ प्रभु, शैतान ने जो विजय यीशु ने जो विजय शैतान पर पाया, उस विजय में जीने के लिए हमारी मदद कर। And help us to keep the devil under our feet always. और हमारी मदद करके हमेशा शैतान को हमारे पैरों तले हम रख सके। We are not afraid of him. प्रभु मुझसे डरते नहीं हैं। Anyone here is afraid of the devil, Lord, set them free. प्रभु जो कोई यहाँ शैतान से डरता है, प्रभु आपको छुड़ाइए उनको। Lord Jesus, you were not afraid of the devil. प्रभु यीशु, तू शैतान से कभी डरता And नहीं you're था। living in us. और प्रभु तू हम में रहता है। The one who lives in us is greater than the one in the world. और जो हम में रहता है वो संसार में उससे बढ़कर है। So we're not afraid of the devil. और हम प्रभु शैतान से नहीं डरते हैं। Deliver everyone here from fear of the devil. और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को शैतान के डर से आप छुड़ाइए। And don't let them give any place to the devil in their heart. और प्रभु वो अपने जीवन में कभी भी शैतान को कोई जगह न दे। You have brought the kingdom of God to earth. और आप अपने राज्य को इस धरती पर लेकर आए हैं। Help us to live in that kingdom in our home and in our churches. और उस राज्य को हमारे घर में, हमारी कलीसिया में जीने के लिए मदद We करें। pray in Jesus' name. और प्रार्थना यीशु के नाम से मांग